تلاوت کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وخلق اللہ السماوات والارض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون افرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم انہم الا یظنون. یہ سورہ جاثیہ کی جو سورہ کا نمبر ہے 45 اس کی آیت میں نے تلاوت کی ہے. یہ آیت نمبر 22 سے لے کر اور پھر یہ پورا مضمون آخر سورہ تک چلا گیا ہے. تو اس کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کریں گے, ترجمہ بھی ہم پیش کریں گے. سب سے پہلے تو ایک بات یہ بتا دیں کہ یہ قرآن پاک اللہ رب العزت کا پیغام ہے اور اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے اتارا ہے. یہ جو اللہ کی کتاب ہے, اللہ کی کتاب اس کے بندوں کے لیے نازل ہوئی اور اس کتاب کو سمجھانے کے لیے, اس کی وضاحت کرنے کے لیے, ایکسپلینیشن کے لیے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا ہے. تو اب ہمارے سامنے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جسے اللہ نے آئیڈیل بنا کر پیش کیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ادھر ادھر مت دیکھو کوئی بھی, اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اب آپ کو نہ کسی فکر کی ضرورت ہے, نہ کسی خیال کی ضرورت ہے, نہ کسی کے اور تقوی اور طہارت کی ضرورت ہے, نہ کسی کی بڑی دانش مندانہ باتوں کی ضرورت ہے, نہ کسی کی کوئی اور فکر کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکمل اور کامل انسان اور ان کے اوپر مکمل شریعت تکمیل کے ساتھ اللہ نے نازل فرما دی اور انہوں نے وہ تکمیل کر کے مکمل اللہ کے بندوں تک پہنچا دی. یہ بات بالکل کلیئر ہو جانی چاہیے کہ ہمارا اور آپ کا جو رشتہ ہے وہ اس قرآن پاک سے جڑ کر رہنے والا ہے اور جو قرآن پاک سے رشتہ جڑے گا, جو اپنے نبی سے رشتہ جوڑ کر رکھے گا, وہی مضبوط اور پناہ میں ہوگا. آپ یوں سمجھیے جیسے تار, یہ وائر ہیں, الیکٹرک کے وائر, یہ وائر دو جگہ کنیکٹ ہوتے ہیں. ایک جگہ جہاں سے بجلی کا سورس آ رہا ہے وہاں سے کنیکٹ ہوتے ہیں. جب وہ تار اس میں لگایا گیا تو کرنٹ اس میں دوڑنا شروع ہوا. اب اس کے بعد دوسری جگہ وہ ہوگی جو جہاں پر ہولڈر ہوگا وہاں پر لگایا جائے گا. اب یہ جو تار ہے, یہ جو یہاں سے لے کر یہاں تک لگا ہوا ہے, اس کے اندر ایک کرنٹ دوڑ رہا ہے. جب آپ یہ بلب یہاں پر لگائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی آپ نے سوئچ آن کیا وہ بلب روشن ہو گیا. اس بلب, اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ہمیں تم سب لوگ مل کر بتاؤ کہ اس بلب کے روشن ہونے کی وجہ کیا ہے, تو سارے لوگ جواب دیں گے بلب کے روشن ہونے کی وجہ ہے کہ بجلی آ رہی. اگر یہ بلب نہیں جل رہا ہے, بار بار بٹن آپ دبا رہے ہیں اور ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں بھائی یہ کیوں نہیں جل رہا ہے, تو آپ کے جواب دو میں سے ایک ہیں. یا تو آپ کہیں گے بلب خراب ہو گیا, یا تو آپ کہیں گے بجلی نہیں آ رہی. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ بجلی بھی آ رہی ہو اور بلب بھی صحیح ہو اور یہ جل نہیں رہا ہے. تو اسی طرح سے آپ یوں سمجھیے کہ اللہ رب العزت کی اتاری ہوئی شریعت, اللہ رب العزت نے شریعت اتاری کس پر؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
वो शरीयत को लिए हुए हैं, आप तक पहुंचाने के लिए तैयार है। यूं समझ लिए कि ये सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का, ये सोर्स है। इससे जो तार कनेक्ट होगा फिर उसमें वो चीज दौड़ेगी, रन करेगी, और उसके बाद वो बल्ब हम और आप सबकी हैसियत एक बल्ब की तरह से, हम अपने आप को जोड़ लेंगे उससे तो चमक जाएंगे, रोशन हो जाएंगे, लोग उससे रोशनी पाएंगे, लोग उससे हिदायत पाएंगे। हम अपने लिए भी फायदेमंद हैं, दूसरों के लिए भी फायदेमंद होंगे। हम दीवार पर लगे हैं तो बल्ब को ऊंचाई पर रखा जाएगा बेहतरीन, और अगर ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा तो उतार के डस्टबिन में फेंक दिया जाएगा। बल्ब अपना काम करना छोड़ देगा तो उसे कोई अपनी जगह पर तो नहीं रखेगा, उसे उतारेगा, उतार के डस्टबिन में फेंक दे, किसी काम का नहीं रहा ये। तो बस आप यूं समझिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये किताब है जो हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दूसरों तक पहुंचाया, हम तक, आप तक, सारे लोगों के सामने पहुंचाया। अल्लाह ने कहा कि हमने आपको पूरी दुनिया के लिए नबी बनाकर भेजा है, कोई फर्द इससे मुस्तस्ना नहीं। तो अब आप जरा सा सोचिए कि अगर हम और आप कट जाएं, दूर हो जाएं, किसी और वादी में चले जाएं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हमारा रिश्ता है अगर हम उसे तोड़ लें, तो ये सोर्स ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी था, जो दौड़ने की जो ताकत थी, वो खत्म हो जाएगी, वो किसी काम की नहीं रहेगी। और आप देखें कि घासें जो सूख जाती हैं वो हवाएं उसे उड़ाकर किनारे ले जाती हैं। जो हरी भरी घास होती है वो अपनी जगह पर बाकी रहती है, सूखी घासें चली जाती हैं। जमाने के जो भी हालात आ रहे हैं हमारे ऊपर, वो हम सूखी हुई घास की तरह हो गए। आप बुरा ना मानिए, आप लोग, अल्लाह रब्बुल इज्जत आप पर रहम करे, हमारे नौजवान बच्चे हैं, आपको देखकर इंतहाई दिल में खुशी होती है, इंतहाई खुशी कि शैतान मरदूद आप पर गलबा नहीं पा सका। वो तो चाहता था कि आपको दूर करे इस दीन से, लेकिन आपने उसे शिकस्त दे दी। ये अल्लाह की तौफीक है कि आप यहां पर आए अल्लाह की किताब को समझने के लिए। लेकिन आज मुसलमानों की कितनी बड़ी तादाद है कि जो अल्लाह की इस किताब से और नबी की हदीसों से बिल्कुल गाफिल है, उन्हें पता ही नहीं। एक डॉक्टर को देख ली, उसने इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ी होंगी, एक इंजीनियर को देख ली, इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ी होंगी, एक वकील को देख लिए, जज को देख लिए, इतनी मोटी मोटी कानून की किताबें उसने पढ़ी होंगी, याद की होंगी। लेकिन कुरान पाक और हदीसें जो हमारी जिंदगी का सोर्स है, ये हमारी जिंदगी है। यूं कह ली जैसे जिंदगी, जैसे मछली के लिए पानी जिंदगी है, मछली को पानी से बाहर निकाल दी मर जाएगी। तो अगर हमको कुरान और हदीस से अलग कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो हम मर जाएंगे। अब हम ख्वाह कितना ही चिल्लाते रहे कि नहीं साहब हमने तो फला से बुजुर्ग का दामन थाम रखा है, वो तो हमने फला पीर के साहब पे बैत कर रखी है, ये सब कुछ आप कहते रहेंगे, लेकिन सही बात क्या है कि जिंदगी हमारे अंदर बाकी नहीं रहेगी अगर हम अल्लाह की किताब से और उसके रसूल से कट जाएंगे। तो ये सोर्स है जो हमें अल्लाह ने उतारा है। बनी इसराइल की सबसे बड़ी गलती ये थी जो अल्लाह ने कुरान पाक में जिक्र की है कि वो कट गए अल्लाह की उतारी हुई किताब से और अल्लाह के भेजे हुए नबी से। अल्लाह ने कुरान पाक में जिक्र किया है। अब इसके बाद अब हम आपके सामने सूरह जासिया की जो आयत नंबर 22 आपके सामने तिलावत की है, पहले इसका हम तर्जुमा पेश करते हैं। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जासिया के माने क्या है? जासिया के माने आते हैं घुटनों के बल खड़े हो जाना, घुटनों के बल। कदीम जमाने में भी और आजकल भी जमाने में जो मुजरिम होते हैं, कल्प्रिट जिन्हें पकड़ा गया, जो मुजरिम है, तो उन्हें हथकड़ी लगाई जाती है, हाथ उनके पीछे कर दिए जाते हैं और घुटनों के बल उन्हें रहने पर मजबूर कर दिया जाता है। ये उनकी जिल्लत है। तो जासिया का लफ्ज वहीं से बना है और उसी के ऊपर गुफ्तगू भी होनी ही आ गया आयत में। अल्लाह ने फरमाया यहां से, अब देखिए, एक अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी बात को इंतहाई वाज़ेह अंदाज में पेश करता है, बहुत वजाहत के साथ। कोई ये नहीं कह सकता कि क्या बतावें, कुरान पाक तो ऐसी किताब है कि हम समझ ही नहीं सकते। ये कहना शैतान का धोखा है कि वो अल्लाह जो अपने बंदों के लिए किताब नाजिल कर रहा है और आप कहें कि वो तो समझ ही नहीं आ रही हमारे, तो फिर नाजिल करने का फायदा क्या?
हाँ, ये आप कह सकते हैं कि चूंकि हम उस किताब से दूर हैं इसलिए हमारी समझ में नहीं है, लेकिन जो ही आप उसके करीब होना शुरू करेंगे आपको समझ में आती जाएगी। अगर दूर हैं तो फिर कसूर आपका है, अल्लाह का तो नहीं, अल्लाह ने तो उतार दिया। अब देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया, व खलक़ल्लाहु समावाति वल अर्द बिल हक़, और अल्लाह ने आसमानों को और जमीन को हक के साथ पैदा किया है। हक के साथ पैदा करने का मतलब क्या है, इसके दो मतलब मुफस्सिरीन ने बयान की हैं। हक का मतलब क्या है कि एक मकसद के तहत पैदा किया है, कि आसमान और जमीन को ऐसे नहीं पैदा कर दिया, अलटप नहीं पैदा हुआ है, एक मकसद के लिए पैदा हुए। हम और आपका, देखिए बड़ी अहम बात है ये इतनी अहम बात है कि न मालूम कितने लोगों ने पूरी पूरी जिंदगियां लगा दी इसी के सोच में कि हम कौन हैं, ये दुनिया क्या है, मरने के बाद इंसान कहां जाता है, क्या होता है, इस सोच में पूरी पूरी जिंदगियां लगा दी। और कुरान पाक उस मसले को एक लाइन में हल कर देता है कि जो तुम आसमान देख रहे हो बुलंदियों के साथ, बुलंदियों वाला आसमान, सितारों से सजा हुआ आसमान, और जो ये जमीन देख रहे हो, हमने इसे एक मकसद के तहत पैदा किया है। और जो तुम लोग हो सारे के सारे इंस और जिन्न, तुम सबको हमने एक मकसद के तहत पैदा किया है। अल्लाह ने फरमाया रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिलन सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। कायनात के अंदर कोई ऐसी शय नहीं है जो फालतू में पैदा हुई है, बिला फायदे में ऐसे ही पैदा हो। हर एक के पीछे उसका मकसद है, तुम जानो या ना जानो, तुम्हारी समझ में आ जाए तो भी और ना समझ में आए तो भी, लेकिन कायनात की हर शय के पीछे एक मकसद है। तो अल्लाह ने फरमाया कि जो हमने तुमको पैदा किया है ए इंसानों और ए जिन्नों, ये दो मखलूक हैं जो जिनसे इम्तिहान लिया जा रहा है, और उस इम्तिहान का रिजल्ट उन्हें क़यामत के दिन सुनाया जाएगा। ये दो लोग हैं, एक जिन्न और एक इंस। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नातों को और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि वो अल्लाह की जात है, खलक़ल्लाहु समावाति वल अर्द, अल्लाह ने आसमानों को और जमीन को एक मकसद के तहत पैदा किया है। और हक का दूसरा मकसद है बैलेंस के साथ पैदा किया है, कि कोई इधर उधर लेकर तुम्हें लुढ़क ना जाए। इस कायनात पर जब आप गौर करेंगे तो आपको नजर आएगा कि बहुत अजीब ये कायनात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाई है, और उसके बिल मुकाबिल हमारी जमीन के हैसियत समंदर के किनारे पड़े हुए रेत के जर्रे के बराबर भी नहीं है। जिस तरह ये गैलेक्सीज हैं और जिस तरह ये पूरा निजाम कहकशानी है, पूरा का पूरा जो निजाम है, अगर आप उस पर गौर करेंगे तो आपको नजर आएगा समंदर के किनारे जिस तरह से एक रेत पड़ी होती है और उसका जर्रा होता है, एक जर्रा हमारी जमीन है उसके बिलमुकाबिल में। न मालूम कितने का ये अभी होती चली जा रही, इंसानों के दिमागों की सीमाएं खत्म हो गई वहां पर, और चलती चली जा रही, होती चली जा रही है, गैलेक्सीज पर गैलेक्सीज मिलती चली जा रही। ये हमारा मिल्की वे तो एक है, इस जैसे अरबों खरबों हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि हमने किसी को बेकार नहीं पैदा किया, तुमको भी हमने ऐसे नहीं पैदा किया है, एक मकसद है तुम्हारा जो इस दुनिया में आने का, और जो इस मकसद को पा गया वो कामयाब इंसान है। फिर आगे फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वलितुज्जा कुल्लु नफ्सिम बिमा कसबत वहुम ला युज़लमून, हमने इंसानों को पैदा किया है और कोई भी नफ्स जो भी है हम उसे बदला देंगे, बिमा कसबत, जो भी उसने किया होगा दुनिया में। आप नेकी के काम करें या बुराई के काम करें, अच्छे काम या बुरे काम, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि हम तुम्हें इसका बदला देंगे। कल कयामत, तुम दुनिया में जैसे इम्तिहान हाल में लड़के बैठते हैं, कापियां हाथ में होती हैं, एक टाइम होता है, अब आप उस कापी पर क्या लिख रहे हैं, बड़े बड़े जो टीचर हैं आपके, विजिलेंट हैं, सब टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, कोई बताने तो नहीं आता आपको, कोई नहीं बताता आपको, कोई कुछ नहीं कहता है। आप उस कापी के ऊपर लिख रहे हैं, चाहे तो आप बैठे रहे चकर मकर करते रहे, इधर दीवार देखते रहे, वो देखते रहे, चाहे यहां रहकर उस जहां पर एग्जामिनेशन हॉल है उसकी आप बुराई बयान करते रहे कि ये तो इंतहाई बेकार है, तो वहां का प्लास्टर उखड़ा हुआ है, वहां के देखिए ये बहुत खराब है, तो पेंटिंग बहुत खराब लगी हुई है, ये सीलिंग फैन नहीं चल रहा है तो बहुत बेकार है। आप जितनी देर आप चाहे जो कुछ करते रहे,
اور چاہے उसकी आप तारीफ करते रहे, और चाहे आप सर रख के वहां सो जाए, या कॉपी पर आप कुछ आप लिखते रहे, या आप अपने वक्त को बहुत गनीमत समझे, एक एक सेकंड को अपना कीमती जाने, और उसके बाद उस कॉपी के ऊपर वही लिखें जो टू द पॉइंट है, जो सवाल आपको आता है और जिसकी आपने तैयारी की है, वो आप उस पर लिखना शुरू करें। अल्लाह ताला फरमाता है बोली तुजजा कुल्लु नफ्सिन, फिर हम हर नफ्स को, हर शख्स को हम बदला देंगे बिमा कसबत, जो भी उसने किया होगा। खैर किया होगा तो खैर का बदला मिलेगा, और शर किया होगा तो शर का बदला मिलेगा। वहुम ला युज़लमून, किसी के साथ कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। यह अल्लाह रब्बुल इज्जत का ऐलान है, किसी के साथ कोई जुल्म नहीं होगा। आपने इतना भी नेकी की होगी, छोटी सी भी नेकी की होगी, उसका भी बदला आपको मिलकर रहेगा। कभी आपने ऐसे ही अल्लाह को पुकारा होगा, अल्लाह अकबर कहा होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा, ऐसे ही कहा होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे भी जाय नहीं करे, को भी नेकी मिलेगी। रास्ते से कभी कोई तकलीफ दे चीज हटा दी होगी, उसका भी बदला आपको मिलेगा। किसी को आपने तसल्ली दे दी होगी, किसी के मुसीबत में आप काम आ गए होंगे, कोई आदमी परेशान हाल था, उससे बैठकर आपने दो बातें कर ली, उसका गम हल्का कर दिया, ये सारी नेकियां अल्लाह ताला फरमाता है कि हम कुछ भी जाय नहीं करेंगे। एक रास्ते में पड़ा हुआ कांटा भी तुमने उठाकर किनारे कर दिया, वो भी भाई हम उसका बदला देंगे तुम्हें। तो इस दुनिया के अंदर आपका एक एक सेकंड ये इम्तिहान में है, और ये सब इबादत है। ये सारी चीजें इबादत में शामिल हैं। इबादत सिर्फ नमाज का नाम नहीं है, इबादत सिर्फ रोजे का नाम नहीं है, इबादत सिर्फ तिलावत का नाम नहीं। ये हम और आप बैठे हैं, कुरान पाक को सुन रहे हैं, कुरान पाक की आयतों को समझ रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीसों को सुन रहे हैं, ये सब इबादत में शामिल है। ये सारी की सारी चीजें इबादत के अंदर शामिल है। आगे फरमाया अफराअयता मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, क्या तुमने देखा नहीं उस शख्स को जिसने ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बना रखा है। यह है कुरान पाक हमेशा जड़ से गुफ्तगू करता है, जड़ पर। जैसे कोई दरख्त सूख रहा हो तो उसकी पत्तियों को पानी नहीं दिया जाता, उसकी जड़ को पानी दिया जाता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस शरीफ में आता है, इन फिल जसद मुद्गा, हमारे पूरे जिस्म के अंदर खून का एक लोथड़ा है, गोश्त का एक लोथड़ा। इदा सलहत सलहल जसदु कुल्लु, जब वो ठीक होता है तो पूरा जिस्म ठीक होता है। वइदा फसदत फसदल जसदु कुल्लु, और अगर वो बिगाड़ हो जाता है, फासिद हो जाता है, तो पूरा जिस्म बेकार हो जाता है। अला सुनो, क्या है वो? वही अल कल्ब, वो है दिल। ये जो दिल है, दिल नाम है कल्ब, कल्ब कहते हैं उलटने पलटने को। ये दिल उलटता पलटता रहता है। इस दिल के ऊपर, ये जो दिल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर दुआ पढ़ते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला ताअतिक, आए मेरे परवरदिगार है दिलों को पैदा करने वाले, आए जिसके हाथों में दिल है, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, दिलों को पलटने वाले, मेरे दिल को अपनी ताअत पर कायम रखे। हदीस शरीफ के अंदर आता है, जब बंदा कोई गुनाह के काम करता है तो इस दिल के ऊपर एक सियाह नुक्ता रख दिया जाता है। अगर बंदा तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला उस नुक्ते को मिटा देता है, और जब कोई नेकी करता है तो अल्लाह ताला एक रोशन नुक्ता उसके दिल पर रख देता है। यहां तक कि दूसरी नेकी करता है, फिर और एक नुक्ता, फिर तीसरी नेकी करता है, फिर और नुक्ता, फिर चौथी नेकी, यहां तक कि उसका कल्ब बिल्कुल मुनव्वर हो जाता है, चमचम चमचम चमचमाता हुआ। और उधर अगर बुराई बयान करता है, गुनाह के काम करता है और तौबा भी नहीं करता, तो फिर उसके दिल के ऊपर नुक्ता रखते 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 पूरा दिल उसका सियाह हो जाता है, काला हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल्ला बल राना कुलूब, यही है जिसको कुरान पाक में कहा गया है, जिनके दिल बिल्कुल सियाह हो जाएगा। तो ये दिल के ऊपर, दिल जो है, इसको बहुत संभालने की जरूरत है, और ये देखने की जरूरत है कि इसके अंदर है कौन। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें बताऊं, जाका तामल ईमान मन रज़िया बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या, उसने ईमान का जायका चख लिया, मजा चख लिया, जिसने अल्लाह को अपना रब मान लिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी और रसूल मान लिया, और इस्लाम को अपना दीन मान लिया। आपने फरमाया कि मैं तुम्हें बताऊं कि ईमान में कामिल कौन शख्स है, सबसे ज्यादा जो पुख्ता ईमान। अगर आप चाहते हैं कि हमारा ईमान बिल्कुल बिल्कुल पुख्ता हो जाए, कंप्लीट ईमान वाला, तो फरमाया कि अन यकून अल्लाहु व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवा, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत इस दिल के अंदर सबसे ज्यादा बढ़कर होनी चाहिए।
یہاں تک کہ ایک حدیث شریف میں باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر فرمائے، ذکر لے کر فرمائے، کہا کہ من ولدہ و والدہ والناس اجمعین، اپنے نفس سے زیادہ، اپنے بیٹے سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ، یہاں تک کہ روئے زمین پر جتنے لوگ ہیں ان سب سے زیادہ اللہ اور رسول اس کا پسندیدہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جب کوئی ایسی بات آ جائے، جب کوئی ایسی نوبت آ جائے تو اللہ اور رسول کی بات سامنے ہونی چاہیے، پھر آپ دنیا میں ہر آدمی کی بات کو ٹھکرا دیں اور کاٹ دیں۔ اگر آپ اس میں پڑ گئے کہ دیکھیں یہ صحیح کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کے سامنے آ رہی ہے اور آپ ابھی سوچ رہے ہیں کہ عمل کریں نہ کریں، کریں نہ کریں، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، تو آپ کو سب سے پہلے اس حدیث کی روشنی میں ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ وہ ایمان نہیں ہے۔ وہ ایمان کیسے؟ جس ایمان کا معاملہ یہ ہو کہ جب آپ یہ سوچنے لگیں کہ ہم اللہ اور رسول کی طرف جائیں کہ فلاں آدمی کی بات مانیں، تو پھر آپ سمجھ لیجیے کہ پھر آپ کا ایمان کہاں ہے؟ اس سوچنے بھر کے۔ مجھے یاد آتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں اور کوئی مسلمان اس کے پاس پہنچ گیا اور کہا کہ دلیل لاؤ، تو وہ شخص کافر ہو جائے گا۔ تو لوگوں نے کہا کہ ایسے کیسے کافر ہو جائے گا، یہ کس سی بات ہوئی؟ کہا اس نے یہ سوچا کیسے اپنے ذہن کے اندر کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی اور بھی رسول ہے؟ یہ سوچا کیسے؟ آج اگر آپ یہ سوچ کر دیکھیے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جب ان کے سامنے حدیث رسول آ جاتی ہے تو کہتے ہیں حدیث رسول تو ہے لیکن ہمارا مسلک نہیں ہے، ہمارے امام کا قول نہیں ہے، ہمارے امام کا فتویٰ تو کچھ اور ہے۔ آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچ کر دیکھیے، ایک طرف حدیث رسول ہے، وہ جو جنت جانے کا راستہ ہے، وہ جو صراط مستقیم ہے، وہ جسے اللہ رب العزت نے لوگوں کے ہدایت کے لیے اتارا ہے، وہ جو روشنی کا مینار ہے، وہ جہاں سے ہدایت کے دھارے پھوٹتے ہیں، اس ذات کے سامنے آپ یہ کہیں کہ فلاں پر عمل کریں، کن پر عمل کریں؟ یہ کیسی بات ہے؟ یہ ایمان کہاں ہے؟ تو ایمان کا جائزہ لینے کے لیے اپنے دل کو جھانک کر دیکھ، اس دل کے اوپر اللہ نے بالکل جڑ پکڑی ہے، جڑ۔ قرآن پاک بالکل جڑ پکڑتا ہے۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے دیکھا نہیں جس نے اپنے دل کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں میرا دل جو چاہے گا میں کروں گا۔ نہیں صاحب، دل تو آپ کا شیطان مردود آپ کو بہکائے گا، وہ آپ کو سیدھی راہ پر کب چلنے دے گا؟ جیسے ہی آپ کہیں گے کہ ہم اللہ اور رسول کی بات مانیں گے، وہ ہزاروں چیزیں سامنے لا کر کھڑی کر دے گا۔ نہیں صاحب، ایسے کیسے مان لیں گے آپ اللہ نبی کی بات؟ ایسے کیسے مان لیں گے؟ ابھی یہ دیکھیے، ابھی یہ دیکھیے، ابھی یہ دیکھیے، ابھی یہ دیکھیے، ابھی اس پر غور کی، پوری زندگی تمہاری کٹ جائے گی ان چیزوں پر غور کرتے کرتے، یہاں تک کہ موت آ جائے گی اور کفر اور شرک پر موت ہو کے جاتے چلے جاؤ گے، اور شیطان قہقہا لگاتا ہوا، اپنا خوشی بناتا ہوا کہ ہم نے بہکانے میں ہم کامیاب ہو گئے، ایک کو جہنم پہ۔ لہذا معیار آپ کے سامنے رکھ دیا گیا۔ معیار کیا ہے؟ اللہ اور رسول کی بات جب آ جائے تو بات ختم، پھر فائنل ہو گیا۔ اب ہم کو سوچنا ہی نہیں ہے، شیطان مردود کے کسی وسوسے میں ہمیں آنا ہی نہیں ہے، وہ تو وسوسے ڈالے گا، اس کا تو کام ہے وسوسے ڈالنا۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے، جیسے آدمی ڈوب رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ڈوبتا ہوا آدمی اگر پتا بھی اگر وہاں پر تیر رہا ہوتا ہے تو اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، ڈوبتا ہوا آدمی، حالانکہ اسے معلوم ہے کہ پتا پکڑے گے تو ڈوب جائے گا، معلوم ہے اس کو، لیکن جب ڈوبتا ہوا آدمی ہوتا ہے تو اس پتے کو بھی پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور قربان جائیے کہ ہم اور آپ سب اور ساری انسانیت ڈوب رہی ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنی کتاب اور اپنا نبی ہمارے سامنے بھیج دیا کہ تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ اپنا ہاتھ بڑھاؤ اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور مضبوطی سے پکڑنے کے لیے لفظ میں نے کیوں کہے؟ کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہ من یعش منکم فسیرى اختلافا کثیرا، اب آئندہ تم میں جو زندہ رہے گا میرے جانے کے بعد، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میرے مرنے کے بعد، میرے جانے کے بعد تم میں جو زندہ رہے گا وہ بہت اختلافات دیکھے گا، بہت اختلافات دیکھے گا، جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں نا اختلافات، بہت اختلافات دیکھے گا۔ فعلیکم بسنتی، تو تم میرے طریقے کو لازم پکڑنا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور خلفائے راشدین المہدیین جو ہدایت یافتہ ہیں، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے جن کی بشارت اتاری ہے قرآن پاک میں،
उनके रास्ते को पकड़ना, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी बशारत अल्लाह ने दे दी। बाकी दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिसकी बशारत अल्लाह ने दे दी। और फरमाया अज़्ज़ु अलैहा बिन नवाजिज, दांतों तले मजबूती से पकड़ लेना। व इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, और दीन में नई नई बातें पैदा करने से बचना। फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला, और मुस्लिम की रिवायत तो यहीं पर रुक जाती है, नसई की रिवायत में है व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, क्योंकि दीन में पैदा की जाने वाली हर नई बात बिदात होगी और हर बिदात गुमराही है। और नसई की रिवायत, ये तो मुस्लिम की रिवायत थी, नसई की रिवायत में एक लफ्ज का और इजाफा है, सही इजाफा है, वो क्या है? वह कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, हर गुमराही, एक छोटी सी भी गुमराही हो वो तुम्हें पकड़ कर खींच कर जहन्नम के अंदर ले जाकर डाल देगी। तो अजीजा ने मोहतरम, आप इस बात को समझ रहे हैं अच्छी तरीके से कि हमारी आपकी जिंदगी का मसला है। आज हमारे सामने फितने एक अभी और आएंगे, अभी बहुत फितने आएंगे। अभी दज्जाल का फितना होगा, बहुत बड़ा फितना होगा, जिस दज्जाल कहते हैं धोखा और फ्रॉड को, फरेब को, धोखा देने वाले लोग, फ्रॉड करने वाले लोग। मैं जब ये पढ़ता हूं तो बिल्कुल अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करता हूं कि परवरदिगार तू अपने बंदों पर किस कदर मेहरबान है कि हिदायत के लिए आपने एक रास्ता उतार दिया, मीनार रोशन, कयामत तक के लिए रोशन। कयामत का जो आखिरी दिन होगा, इस दुनिया का आखिरी दिन, उस दिन तक के लिए अल्लाह और उसके रसूल की शरीयत चमकती रहेगी, हमेशा चमकती रहेगी। हम आप अमल करें ना करें, किनारे हट जाए, पूरी दुनिया अमल करे ना करे, किनारे हट जाए, वो शरीयत चमकती रहेगी जब तक ये आसमान और जमीन बाकी है। अब जिसका जी चाहे वो आगे बढ़े और उस शरीयत को मजबूती से पकड़ ले, थाम ले उसको, और जिसका जी चाहे वो उसे छोड़ दे, और छोड़ने के बाद जिसका जी चाहे दामन पकड़ ले। अब वो सोच रहा है कि इस दामन को हम पकड़ेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। दामन को पकड़ेंगे, आप इधर आइए जिसके दामन को पकड़ना है। इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से जो उतारा जा रहा है उसकी पैरवी करो। और यही जो सूरह जासिया पढ़ रहे हैं, ये सूरह जासिया, इसकी आयत नंबर 18 जो इसके ऊपर की आयत है, उसके अंदर यह नबी से कहा जा रहा है सुम्मा जअलना का, इख्तलाफात का जिक्र किया गया है बनी इसराइल का। फिर उसके बाद सुम्मा जअलना का अला शरीअत मिनल अम्र, हमने आए नबी आपको रखा है शरीयत पर, यानी आप शरीयत के ऊपर कायम है, शरीयत आपसे वाबस्ता है, शरीयत आपका नाम है। अगर कोई पूछे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही दीन इस्लाम है, दीन वही है, शरीयत वही है, कानून वही है, अल्लाह की रजा वही है। फरमाया फत्तबिअहा, ऐ नबी तुम पैरवी करो शरीयत की जो हमने उतारी है। वला तत्तबि अहवा अल्लज़ीना ला यअलमून, और उन लोगों की ख्वाहिश की पैरवी ना करो जो कुछ नहीं जानते। ये नबी से कहा जा रहा है। जरा सा सोचिए, नबी से क्यों कहा जाएगा? ये नबी से नहीं कहा, हमसे जा रहा है। बात नबी से कही जा रही है, लेकिन नबी से कहकर हमको आपको सुनाना मकसद है कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत नहीं समझ रहे। इन्हें आपने इतना कहा कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, आपने इतना कहा और चुप हो गए। आपने ये समझा ही नहीं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि अब दीन का सारा फैसला यही होगा, अब इन्हीं का कौल आखिरी कौल जाना जाएगा। अब दीन वही होगा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि यह दीन है, और जो दीन को वो इनकार कर दे, कहे कि ऐसे नहीं ऐसे करो, तो फिर उससे हटना गुमराही होगा। अजीजा ने मोहतरम, बड़ी अजीम बात है, बहुत अहम बात है कुरान पाक की, जिसने ये कहा है कि ये दिल है, इस दिल को शैतान घुमाएगा, इसको चक्कर लगाएगा, इसको पूरी कोशिश करेगा कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हट जाएं। उसकी पूरी कोशिश बस इतनी होगी, ये 50 लाख लोग हैं, इनमें से किसी की तुम पैरवी करो, कोई मतलब नहीं। ये 50 लाख लोग हैं दुनिया में, 50 अरब लोग, किसी के पैरवी कर लो तुम, किसी को जिंदा मुर्दा किसी को पकड़ लो, सितारों की पूजा करो, फरिश्तों की पूजा करो, जिन्न की पूजा करो, दरख्त की पूजा करो, दरियाओं की पूजा करो, जिस चीज की तुम्हारा जी चाहे तुम जाओ, बस अल्लाह की तरफ ना आने को। सारे लोगों की बातें मानो, तुम सबकी बातें मानो, कोई वसवसा नहीं है, कुछ नहीं, सबकी बातें मानो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना मानने पाओ, यह शैतान की पूरी कोशिश है। जब आप इधर की तरफ आगे बढ़ेंगे, जब आप अपने दिल से यह कहेंगे कि आज से मैंने फैसला किया कि मैं अल्लाह और उसके रसूल की बात मानूंगा, यह है अल्लाह की किताब, और इस किताब को समझाने वाले हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शरीयत हैं
जो दीन है, जो सिरात मुस्तकीम है, जो मीनार हिदायत है, अब मैं उन्हीं की बात मानूंगा और मैं उन्हीं की पैरवी करूंगा। ये जिस दिन से आपने कहा, बस आप समझ लीजिए कि शैतान और उसका पूरा लश्कर आपको परेशान करने के लिए खड़ा हो गया, क्योंकि उसे मालूम है कि अब जितनी जिंदगी आपकी बची है, ये जिंदगी जैसे ही अपनी जगह पर खत्म होगी, आप सीधे जन्नतुल फिरदौस जाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत के साए में जाएंगे और फरिश्ते कहेंगे तिब तुम सलामुन अलैकुम, क्या कहने आप पर अल्लाह की सलामती हो, हम तो आप नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, हम दुनिया की जिंदगी में भी तुम्हारे सपोर्ट और तुम्हारी मदद के लिए मौजूद थे और आखिरत में भी हम तुम्हारे लिए मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन पर अमल करने का यह नतीजा होगा। आगे फरमाया गया कि वह अज़ल्लहुल्लाहु अला इल्मिन, कितने ही ऐसे लोग हैं कि अल्लाह ने इल्म रखने के बावजूद, अल्लाह, ये आप इल्म रखने के बावजूद अल्लाह ने उन्हें गुमराह कर दिया। जरा सुन रहे हैं, यह कुरान की तफसीर है, कुरान की आयतों का आप, कुरान के आयतों से आप वाबस्ता हो रहे, कनेक्ट हो रहे हैं आप, ये कोई दुनिया की बातें नहीं है। इसी को कहा गया खैरुल हदीस किताबुल्लाह, सबसे बेहतर बात अल्लाह की किताब है, ये ऐसे नहीं कहा गया है। ये देखिए आप, वअज़ल्लहुल्लाहु अला इल्मिन, इल्म के बावजूद अल्लाह ने गुमराह कर दिया। क्या डर नहीं लगता लोगों को इस बात से? आप सोचते हैं कि बहुत पढ़ लिख ले जाएंगे तो सब आलिम हो जाएंगे ना। हिदायत अल्लाह के सामने झुकने से मिलती है, नबी की फरमाबरदारी से मिलती है। यह दर है, जहां पर इंसान जब झुका देता है अपने आप को तो अल्लाह नवाजता है, और जहां पर जो अकड़ पैदा करता है अल्लाह ताला उससे छीन लेता है। आना है जो बज़्म जाना में पिंदारे खुदी को तोड़ के आ, आए होश और खिरत के दीवाने, या होश और खिरत का काम नहीं। अल्लाह के सामने जो है झुकने का नाम है। जिस दिन आपने यह तय कर लिया कि मेरा पढ़ना, मेरा कुरान पढ़ना, मेरा हदीस पढ़ना इसलिए है कि मैं अमल करूं। अजीजा ने मोहतरम बड़ी कीमती बात कह रहे हैं, काश कि आप सुन लें इसको। जिस दिन आपने तय किया कि मेरा कुरान पढ़ना, मेरा हदीस पढ़ना इसलिए है कि मैं इस पर अमल करूं, आप हिदायत के रास्ते पर हैं। और जिस दिन आपने तय किया कि मैं कुरान और हदीस इसलिए पढ़ूंगा ताकि मैं देखूं इसके अंदर क्या खराबियां हैं, मैं देखूं इसको आपस में कंट्राडिक्ट कैसे किया जाए, मैं देखूंगा कैसे इसको टकराया जाए, मैं देखूंगा कैसे इसके जरिए दूसरों पर गलबा पाया जाए, मैं देखूंगा कैसे लोगों के जहनों को मोड़ा जाए, तो आप समझ लीजिए कि अल्लाह ने फरमाया कि इस इल्म रखने के बावजूद तुम हिदायत नहीं पा सकते। ठीक है, तुम पढ़ जाओगे पारे, इल्म तो है ही है, दुनिया में कोई भी पढ़ ले आके। कितने ही ऐसे ईसाई हैं, पूरी किताबें मौजूद है इसके ऊपर, जिन्हें ओरिएंटलिस्ट कहा जाता है, मुस्तशरिकीन जो कहलाते हैं, बड़ी किताबें पढ़ी, कुरान हदीस बुखारी मुस्लिम सब पढ़ डाला उन्होंने, लेकिन हिदायत के रास्ते पर नहीं आ सके। इल्म के बावजूद अल्लाह ने उन्हें गुमराह, क्योंकि हिदायत तो चाहते नहीं थे। तो जो अल्लाह के यहां हिदायत चाहता है अल्लाह ताला उसको हिदायत देता है, और जो नबी से दूर हो जाए, उनकी बातें मानने से इनकार कर दे, उनकी बातों पर अमल ना करे और अपना मुंह धर की तरफ मुंह किए रहे और सोचे कि बस हमको हिदायत मिल जाए, कैसे हिदायत मिलेगी? कैसे तुमको हिदायत मिलेगी? हिदायत के लिए तो उतार दिया अल्लाह ने नबी को। अब जब तुम उनकी बात ही नहीं मान रहे तो हिदायत कहां से मिलेगी तुमको? फरमाया, अब आगे सुनिए, वख़तमा अला समिही व क़ल्बिही, और उसके समाअत पर और उसके दिल पर मोहर लगा दी गई और उसकी निगाहों के सामने पर्दा डाल दिया गया। फ़मन यहदीहि मिन बादिल्लाह, अल्लाह के बाद कौन है जो उसे हिदायत दे? हिदायत तो अल्लाह देता है, हिदायत तो अल्लाह देता है। तुमने हिदायत मांगी कब हमसे? हिदायत कैसे मिले तुम्हें? आगे फरमाया, अफला तज़क्करून, क्या ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आती? तुम जन्नत किसकी पाना चाहते हो? अल्लाह की जन्नत पाना चाहते हो ना, अल्लाह की जन्नत में दाखिल होना चाहते हो, अल्लाह की जहन्नम से बचना चाहते हो, तो जिसकी जन्नत, जिसने जन्नत बनाई है तुम्हारे लिए, उसकी बातें नहीं मानोगे। वो कहे कि हमने रसूल को बनाया है उसवा, तुम कहो वो तो ठीक है, हम तो इनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन बातें इनके एक और ही मानेंगे, बातें हम उनकी मानेंगे, फला की मानेंगे। ये तो ठीक है, बातें हम उनकी मानेंगे, ये कौन सी बात है?
अल्लाह के नबी की बात कुछ और है और उनकी बात कुछ और होगी, तो आप कहोगे ठीक है नबी की बात छोड़ी जा सकती है, उनकी बात नहीं छोड़ी जा सकती। ये कौन सी बात है? अरे तुम्हें किसने हक दिया कि हदीसों को बांटने रखो? कहो ये हदीस है हनफियों की, हदीस है शाफियों की, हदीस है मालिकियों की, हदीस है अंबलियों की। इस हदीस सही, इस पर हनफी अमल करेंगे, ये हदीस सही, इस पर मालिकी करेंगे, ये हदीस सही, इस पर शाफी अमल करेंगे, ये हदीस सही, इस पर अंबली अमल करेंगे। मैं तुमको ये किसने इख्तियार दिया कि कीमा करो बैठकर? किसने दिया? जिसने शरीयत उतारी उसने कहा कि पैरवी करो। अब या तो तुम पैरवी करोगे या नहीं करोगे, दो ही बातें होंगी। पैरवी करोगे जन्नत में जाओगे, पैरवी नहीं करोगे जहन्नम में जाओगे, तीसरा कोई रास्ता ही नहीं। कुरान पाक ने कहा है कल क़यामत का दिन होगा, फरमाया फरीकुन फिल जन्नती व फरीकुन फिस सईर। कुछ लोग होंगे जो जन्नत जाएंगे, कुछ लोग होंगे जो जहन्नम जाएंगे, बीच का कोई रास्ता ही नहीं। सच बढ़े या घटे तो सच न रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सच है, वो हक है, उसके अलावा तो इंतहा ही नहीं। कई लाख इंसान यहां पर है, कई लाख दिमाग है, कई लाख फिक्रें हैं, कई लाख बातें हैं। इन लाख को और मल्टीपल कर दो लाख से तो करोड़ों अरबों बन जाएंगे, खरबों बन जाएंगे, जिंदा हो मुर्दा सब शामिल कर दो। यहां तक कि मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम बड़ी इज्जत है, हम सब उनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन शरीयत उनकी भी अमल पैरा नहीं होंगे, शरीयत उनकी भी नहीं चलेगी, शरीयत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चलेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लौकाना मूसा हय्यन मा वसियहु इल्ला इत्तिबाई। अगर मूसा आज जिंदा होते, मूसा अलैहिस्सलाम जिन पर तौरात नाजिल हुई, जो कलीमुल्लाह हैं, अल्लाह ने उनसे बात की, जिनसे बाकायदा मोजिजात उन्हें अता किए गए, बड़ा मकाम है, बड़ा मर्तबा है उनका। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आज मूसा जिंदा होकर मेरे सामने बैठे हो तो मेरी शरीयत पर अमल किए बगैर उन्हें नजात न मिलेगी। हम और आप किस शुमार में? ये तो नबी की बात है, नबी के मामला है। अल्लाह अकबर, काश की बात हम लोग की समझ में आ जाए। वक़ालू मा हिया इल्ला हयातुना दुनिया नमूतु व नहया। और लोगों ने कहा कि बस यही जिंदगी है हमारी, दुनिया की जिंदगी, मारेंगे, जिएंगे, खाएंगे, पिएंगे, वमा युहलिकुना इल्ला दार, बस जमाना जैसे जी रहे, मर जाएंगे एक दिन, बस खत्म, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है वमा लहुम बिज़ालिका मिन इल्म। उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है, क्या होगा उनके साथ में, इन्हें बेचारों को पता ही नहीं। इनहुम इल्ला यज़ुन्नून, ये बस गुमान कर रहे हैं, सोच रहे हैं ऐसा होगा, यूं होगा, ऐसा हो गया, ऐसा। ये हक बातें नाजिल हो रही हैं, ये समझ में नहीं आ रही हैं। व इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनात, और जब उनके सामने वाज़ेह और रोशन बातें पेश की जाती हैं, अल्लाह की ये बातें बिल्कुल रोशन, अल्लाह के नबी की हदीसें बिल्कुल रोशन, ये जब बातें उनके सामने पेश की जाती तो क्या कहते हैं? शैतान मरदूद का तीर देखो कैसे चलाया जाता है, कैसे वो दिल और दिमाग के अंदर गलत बातें दाखिल करता है। लोग कहते हैं, फौरन कहते हैं इल्ला अन क़ालू तू बिआबाइना इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो हमारे बाप दादाओं से इस बात को दिखाओ। उनकी दलील यही होती, अरे भाई हमारे बाप दादा नहीं करते आए तो हम क्यों करें? बाप दादा की बात बीच में कहां से आ गई? हिदायत के लिए तो अल्लाह के रसूल आए हैं, तुम्हारे बाप दादाओं को हिदायत थोड़ी दी गई थी, उनको थोड़ी महवर हिदायत बना दिया गया था, हादी थोड़ी थे वो। अल्लाह के नबी पर शरीयत उतारी, तुम्हारे बाप और दादाओं पर तो शरीयत नहीं उतरी। वो अच्छे थे बुरे थे, वो फैसला अल्लाह करेगा। तुम्हारे सामने ये किताब मौजूद है, तुम्हारे सामने ये किताब मौजूद है, ये किताब फैसला करेगी। आगे फरमाया कुलिल्लाहु युहयीकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा यजमउकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फीह। आए नबी आप ये कह दीजिए कि अल्लाह तुम्हें जिंदा करेगा, तुम्हें मारेगा और तुम सबको इकट्ठा करेगा कयामत के दिन, इसमें कोई शक नहीं। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग इस बात से वाकिफ नहीं, इस बात को जानते नहीं। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, और आसमानों और जमीन की सारी बादशाहत सिर्फ एक अल्लाह के लिए है। व यौम तक़ूमुस साअह, और जिस रोज कयामत कायम हो जाएगी, यौमइदिन यख्सरुल मुब्तिलून, उस दिन जो बातिल पर हैं वो खसारे में हो जाएंगे। इसका बड़ी अहम बात है अजीजान मोहतरम। हम लोग देखते हैं नोटें चलती रहती हैं, नोट होते 500 का नोट,
और इस तरह का 20 का नोट है, 50 का नोट है, 100 का नोट है। नोट दो तरह के होते हैं। एक नोट वो है जो वाकई नोट है, असली, और एक वो नोट है जो मनोरंजन टाइप में बना दिया जाता है, या कुछ नोट हैं जो काउंटरफिट होते हैं, झूठे होते हैं, ऐसे भी बना दिए जाते हैं। आपने रात के अंधेरे में समझ लीजिए कि आपने नोट ले लिया, और नोट लेने के बाद जब सुबह रोशन हुई और जब आप दुकान पे पहुंचे और सामान खरीदा, चावल, दाल, आटा, शक्कर, मैदा, जो खरीदा हो आपने, उसके बाद जब नोट निकाला जेब से, तो वो जेब कौन सा नोट निकला? चूरन वाला नोट। तो अब आप बताओ, क्या आप उसको देंगे या वो दुकानदार लेगा? उस वक्त आदमी के हाथों के तोते उड़ जाएंगे। अरे ये जो रात में हमको इसने गद्दी पकड़ाई थी, वो झूठी पकड़ा दे गया था, नकली, पकड़ो उसको, कहां गया वो? अब मालूम है वो रफू चक्कर हो गया, वो है कहां? इस दुनिया में जब तक आप हैं, ये दो आंखें अल्लाह ने दी हैं आपको। रात में भी तो आंखें थी, जब सुबह तो आपको नोट की गड्डी पकड़ा रहा था, आंखें तो थी ना, लेकिन तुम तो जल्दी में थे, तुम तो बहुत जल्दी में थे ना। तुमको नोट देख लेना चाहिए था ना, वो नोट देख लेना चाहिए था कि वो असली नोट दे रहा है कि चूरन वाली नोट दे रहा है। तुमने उसे पकड़ा, उठा के जेब में रखा, चल पड़े। अब जब यहां पर खड़े हो तो पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब क्या फायदा तुम्हारा? अब तुम अफसोस करो, लेमेंटेशन करो, मातम करो, अफसोस को क्या फायदा तुम्हारा भाई? अल्लाह ने आंखें दी थी ना तुमको, दिमाग दिया था, दिल दिया था, मोबाइल रखा था, रोशनी जला के देख लेते कि सही नोट दे रहा है कि खराब नोट दे रहा है। बिल्कुल यही मामला होगा इस दुनिया के अंदर। आप हैं, लोग आपको फालतू शरीयत पकड़ा रहे, ये पकड़ो दीन, ये दीन लो साहब, ये दीन ले लीजिए, और आपका दिमाग का ढक्कन इतना बंद है कि आप एक बार भी नहीं देख रहे कि क्या ये हमारे अल्लाह के रसूल ने फरमाया। उनकी किताबें मौजूद है, हदीस मौजूद है, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, नसई, हदीस की सारी किताबें मौजूद हैं, सनदों के साथ मौजूद हैं, उन पर हुक्म लगा हुआ है। हदीसें सही अलग है, हदीसें ज़ईफ अलग है, सब आपके सामने मौजूद हैं। आप एक बार भी देख नहीं पा रहे हो कि ये सही है कि गलत है। अब जब कल बरोज़े क़यामत, जब नामा आमाल तौले जा रहे होंगे और आप पहुंचे वहां लेकर अपना नामा है और कहेंगे भाई हमारा भी नामा आमाल तौला जाए, हम बड़ी नमाजें लेकर आए हैं, हमारे पास बड़ी रोजे हैं, आपके पास लिस्ट मौजूद है, देखिए। और मालूम हो जाए वहां जो फरिश्ता खड़ा है वो जैसे ही कहे नहीं इसको तो हटाओ, किधर है, ये कहां चलेगा, ये नामा अमल पे कहां रखा जाएगा? कुरान पाक ने इसको कहा है, हमने ऐसे मिसाल नहीं दी है, सूरह काफ में कहा है, वला नुकीम लहुम यौमल क़ियामति वज़ना। कितने ऐसे लोग होंगे कयामत के दिन उनका नामा अमाल हम उस पर रखेंगे ही नहीं। एक जगह पर कहा गया वजअलनाहु हबा मंसूरा, उनको हम ऐसे उड़ा देंगे, फेंक देंगे उनको, कोई काबिल कबूल नहीं। अमल वही काबिल कबूल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दरमियान भेजे गए, नबी बनाकर भेजे गए, हिदायत का मीनार बनाकर भेजे गए, हिदायत की रोशनी बनाकर भेजे गए, सिराते मुस्तकीम बनाकर भेजे गए, हिदायत के सारे धारे उनसे फूटते हैं। अल्लाह ने हिदायत के लिए उनको मरकज करार दिया है, उनकी इताअत को हम पर लाजिम करार दिया है, और यहां तक कह दिया उम्मा युती रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत कर ली उसने अल्लाह की इताअत कर ली, बात खत्म। अब अगर आप उनकी बातें न माने और दुनिया जहान के हजारों लाखों लोगों के दीन की बातों पर अमल करते रहे, तो इसमें गलती किसकी है? कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला जालिम नहीं है, अल्लाह ताला आप पर कोई जुल्म नहीं, इसलिए दिमाग दिया है आपको, बड़े बड़े फैसले आप करते हैं, बड़े अपने आप दिमाग से सोच कर देखिए, आप बहुत जीनियस हैं, आप बहुत ज़हीन हैं, अल्लाह ने आपको दिमाग दिया है। न मालूम कितने फैसले आप मिनटों में कर देते हैं, न मालूम कितना सच और झूठ का आप पता लगा लेते हैं, न मालूम कितनी गलत बात और सच बात को आप परख लेते हैं। आदमी का चेहरा देखकर कह देते हैं शख्स ये सच झूठ बोल रहा है, झूठा आदमी। अल्लाह ने इतना आपको ज़हीन बनाया है, दीन के मामले में आपकी अकल का पहिया पंचर हो गया, सब खत्म हो गया। यहां पर आकर आपने कहा कि नहीं साहब हमारे बाप दादा जो करते आ रहे, ठीक है, तुम्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात याद नहीं कि अल्लाह ने उनको हिदायत का मीनार बना दिया, सिराते मुस्तकीम करार दिया उन्हें। इन्नका लतहदी इला सिराते मुस्तकीम, आए नबी बेशक सिर्फ अकेले तन्हा आप सिराते मुस्तकीम की हिदायत करते हैं, वो रास्ता आप बताते हैं, नबी आप बताते हैं वो रास्ता जो सिराते मुस्तकीम है, सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। अल्लाह ने फरमाया वतरा कुल्ला उम्मतिन जासिया
तुम देखोगे कि हर कौम को अपने घुटनों के बल है, वो अफसोस में, परेशान हाली में है। कुरान ने एक नक्शा खींचा है, कहा यौम यअद्दु ज़ालिमु अला यदैहि, जिस रोज जालिम अपने हाथों को चबाएगा वो कहेगा या लैतनी इत्तखज़्तु मअर रसूली सबीला, काश कि मैंने रसूल का रास्ता इख्तियार किया होता। या लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, काश कि मैंने फुला को अपना दोस्त ना बनाया होता। लक़द अदल्लनी अन ज़िक्रि बाद इज़ जानी, इस किताब रोशन किताब के आने के बाद उसने मुझे गुमराह कर दिया, मुझे हटा दिया इस किताब से, मेरे उन दोस्तों ने हटा दिया, मुझे उन लोगों ने हटा दिया। फरमाया कुल्लु उम्मतिन तुदआ इला किताबिहा, हर उम्मत को बुलाया जाएगा अपनी किताब पढ़ने के लिए जो नामा अमाल है। अल यौम तुरज़ौना मा कुंतुम तामलून, आज तुमको बदला दिया जाएगा जो तुम किया करते थे दुनिया में, जो भी तुमने अमल किया। हाजा किताबुना यंतिकु अलैकुम बिल हक, ये है हमारी किताब जो तुम्हारे ऊपर हक बयान करती थी। इन्ना कुन्ना नस्तनसिखु मा कुंतुम तामलून, और हम वो सब लिखा करते थे जो तुम अमल कर रहे हो। फ़अम्मल लज़ीना आमनू, तो जहां जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए, फ़युदखिलुहुम रब्बुहुम फ़ी रहमती, तो जहां तक ताल्लुक है उन लोगों का जो ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए, अल्लाह उनको अपनी रहमत में दाखिल करेगा, उनका रब उन्हें अपनी रहमत में दाखिल करेगा। ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, यह है सबसे बड़ी कामयाबी, सबसे बड़ी कामयाबी, वाज़ेह रोशन कामयाबी है ये। व अम्मल लज़ीना कफ़रू, और जिन लोगों ने कुफ्र की राह इख्तियार की, अल्लाह ताला कह रहा है अफलम तकुम आयाती तुतला अलैकुम, क्या हमारी आयतें तुम्हें पढ़कर नहीं सुनाई जाती थीं। फस्तकबरतुम, मगर तुमने घमंड की राह इख्तियार की, किब्र किया। व कुंतुम कौमम मुजरिमीन, और तुम लोग मुजरिम कौम थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और ये जो कुरान पाक की आयतें पढ़ी गई हैं इसको अच्छी तरह से समझने की तौफीक अता फरमाए। हिदायत का जो रास्ता अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया है, और ये भी वाज़ेह कर दिया है कल क़यामत के दिन हम उसी बुनियाद पर फैसला करेंगे। तो लिहाजा अगर हमने अपने नामे आमाल में इधर उधर का कुछ और लिख रखा होगा तो वो काबिल कबूल ना होगा। लिहाजा हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि सबसे पहले हम अपने आप को तैयार करें, अल्लाह से हिदायत मांगे, अल्लाह के सामने झुक जाएं, अल्लाह की किताब से और नबी की हदीस से अपने आप को जोड़ लें। अल्लाह की किताब का हम तर्जुमा पढ़ें और हदीसें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सब कुरान पाक की तफसीर है, जो सही हदीसें हैं, उन हदीसों को पढ़ें और इनकी रोशनी में अपनी जिंदगी का महल तामीर करें। अल्लाह ताला दुनिया में भी हमें कामयाब करे और आखिरत में भी कामयाब करे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बिस्मिल्लाह।